السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس پر قابو پا لیا۔ قرآن کریم کی ایک سورہ ہے، سورہ شمس، اس میں رب تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا حکم ہے اس سورہ میں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں رب تعالیٰ ہم سے۔ ہم کوشش کرتے ہیں سب کہ ان کاموں سے اجتناب کریں جن کا رب تعالیٰ نے جن سے اجتناب کرنے کو فرمایا ہے، لیکن انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، نہ سمجھ ہے، غلطی کرتا رہتا ہے، رب تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، پھر غلطی کرتا ہے، پھر توبہ مانگ لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم مجھ سے توبہ کر لو، غلطی کا اعتراف کر لو، توبہ کر لو، پھر اس کے بعد وہ گناہ دوبارہ نہ کرنا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، گناہ کیا، توبہ کر لی، پھر جب موقع آیا کر ایک دفعہ اور کر لیتا ہوں، تو مزہ تھا۔ وہ آپ کا نفس آپ کو ایکسائٹ کرتا ہے، اکساتا ہے، کر لو، بہت اچھا لگا تھا۔ چوری کا پھل کھا لیا، بڑے بڑے کہا کرتے تھے چوری کا گڑ میٹھا زیادہ ہوتا ہے۔ چوری کا پھل کھا لیا، جاتے جاتے درخت سے آم توڑ لیا، سیب توڑ لیا اور کھایا کہ یہ بہت اچھا تھا۔ جب احساس ہوا کہ اوہو یہ تو غلطی ہو گئی، توبہ کر لی رب تعالیٰ سے۔ وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے کہ وہ اس وقت توبہ رب تعالیٰ سے مانگنی ہے یا جس کا درخت ہے اس سے مانگنی، جا کے اس سے غلطی کا اقرار کرنا ہے۔ لیکن فار دا ٹائم بھی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ توبہ کر لیتے ہیں، پھر وقت آتا ہے تو پھر کہتے ہیں جی ایک دفعہ اور کر لیتا ہوں، یہ ایک دفعہ میں کیا ہو جائے گا، ہم پھر وہی گناہ کر لیتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں جی سارے کر رہے ہیں نا، سب چلے جا رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، میں بھی کر لیتا ہوں، کوئی بات نہیں، اللہ معاف کر دے گا۔ یہ نفس جو ہے وہ ہمارا آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے، وہ ہمیں اکسا رہا ہے، شیطان ہمارے نفس میں بیٹھا ہے، وہ ہمیں کہہ رہا ہے کر لو گناہ، کوئی بات نہیں۔ سوچنے والی بات ہے، گناہ کرتے رہیں گے، معافی مانگتے رہیں گے رب تعالیٰ سے۔ از دس واٹ یو وانٹ؟ شرمندہ ہوتے رہیں صبح رات شام، شرمندہ ہوتے رہیں رب تعالیٰ سے۔ لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ شمس میں، رب تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں ترجمہ آپ کو اس کا سنا دیتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے سورہ شمس میں فرمایا، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، شمس و ضحاہا، اس کی روشنی کی، اور چاند کی جب سورج کے غروب ہونے کے بعد آئے، اور قسم ہے دن کی جس میں سورج خوب روشنی لائے، اور قسم ہے اس رات کی جب وہ اس کی روشنی کو چھپا لے، قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اس کو بنایا، اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اس کو بچھایا، اور قسم ہے انسان کے جان کی اور اس ذات کی جس نے اس کو درست بنایا۔ دیکھیے رب تعالیٰ کس قدر آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہر چیز جو اس نے تخلیق کی ہے اس کی قسم کھا رہا ہے آپ کو۔ پھر وہ کہتا ہے قد افلح من زکاہا، قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ مراد کو پہنچا جس نے اپنی ذات کو پاک رکھا اور اپنے نفس کو قابو کر لیا۔ ایک سینٹنس ہے، پوری زندگی کا اس سینٹنس پہ نچوڑ ہے، اس لیے رب تعالیٰ نے اتنی قسمیں کھائی ہیں۔ اگر ہم نے اپنے نفس کو قابو کر لیا، اگر ہم نے جو گناہ کی باتیں جو منع فرمائی رب تعالیٰ نے، اس میں مزہ بھی ہے، اس میں آپ کو خوشی بھی ملتی ہے، لیکن آپ کی روح کو پریشانی ہوتی ہے۔ آپ اس کو اگر قابو کر لیا، نفس شیطان کو فالو کرتا ہے، یا ہم شیطان کو فالو کرتے ہیں اپنے نفس کے ذریعے، اس کو قابو کر لیا تو ہم مراد کو پہنچ گئے۔ اگر ہم فیل ہو گئے
हमने काबू नहीं किया। तो फिर वक़द ख़ाब मन दस्साहा, ना मुराद रह गए तुम, नाकाम रह गए तुम, गुनाह के रास्ते पे चल पड़े। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि शुरू में गुनाह करते हैं तो इंसान का जो कॉन्शियस है, जो ज़मीर है, वो उसको मना करता है। लेकिन फिर एक वक्त आता है कि ज़मीर कमज़ोर हो जाता है, नफ्स मजबूत हो जाता है। फिर वो नफ्स उसको उकसाता है कि कर लो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा, पहले भी कभी कुछ हुआ है, कर लो इसको, इस गुनाह को दोबारा से कर लो ना। ज़मीर कमज़ोर हो जाता है। तो रब ताला ये फरमा रहे हैं उस शम्सुद्दुहा में कि तुम अपने नफ्स को काबू कर लो। जिसने अपने नफ्स को काबू कर लिया वो मुराद को पहुंच गया, और जो इसमें फेल हो गया वो नामुराद रहा। तो नफ्स को काबू करना जो है मेजर इशू है। सारे गुनाह जो है वो नफ्स करवाता है। वो हमारे नफ्स कहता है कर लो, कोई बात नहीं, ये चोरी का घोड़ा खा लो, कोई बात नहीं, बहुत मीठा होगा, सब कहते हैं खाया। छोटी छोटी बात जो रब ताला ने मना फरमाई है, उससे अगर आप अपने नफ्स से लड़ना शुरू कर देंगे कि ये नहीं करना मैंने, तो आपका जो नफ्स कमज़ोर हो जाएगा और जो ज़मीर है मजबूत हो जाएगा। अक्सर एक्सपीरियंस किया होगा आपने, जब कोई काम करने लगते हैं तो अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं ये नहीं करना, ये गलत है। गिल्टी कॉन्शियस होता है इंसान, गिल्टी कॉन्शियस तो समझते हैं ना आप, वो ज़मीर की आवाज़ होती है कि ये मत करना। लेकिन जब हम उस आवाज़ को नहीं सुनते तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज़ कमज़ोर हो जाती है। ये रब ताला का कमाल है कि उसने आपका आज़ाद कर दिया कि जाओ, जो दिल करता फिर करो, फिर देखूंगा तुम्हें क्या होता है। तो हमें लाजिम है कि अगर हमें सिरात मुस्तकीम पे चलना है, अगर हमें राह मोमिन पे चलना है, अगर हम कामयाबी की राह को तलाश कर रहे हैं, ज़िंदगी की भी और आखिरत की भी कामयाबी की राह, तो लाजिम है अपने नफ्स को हम कमज़ोर कर लें। उसके लिए फ़कीर लोग, आलिम लोग, उलमा हज़रात ये कहते हैं कि अपने नफ्स की कहा मानना बंद कर दो, उससे लड़ो, उससे लड़ो कि ये नहीं करना मुझे। एक फ़कीर थे, किसी हलवाई की दुकान के पास से गुजर रहे थे, जलेबियाँ वो बना रहा था, तल रहा था या बना रहा था, तो देख के उनके दिल में ख्याल आया, मुंह में पानी आया कि गर्मा गर्म जलेबी खाएं तो बड़ा मज़ा हो। तो उन्होंने अगले दिन से मजदूरी शुरू कर दी, पैसे कमाऊंगा, जलेबी ख़रीदूँगा तो खाऊंगा। 3-4 दिन खूब धूप में, कड़ी धूप में खूब मेहनत की। जब पैसे मिले तो वापस आ रहे थे अपने काम से, जलेबियाँ ख़रीद ली, घर जाके बैठे कि अब मैं जलेबी खाऊंगा। जब मुंह की तरफ जलेबी लेके गए तो एकदम ख्याल आया कि 3 दिन मैंने मेहनत की सिर्फ जलेबी खाने के लिए। 3 दिन अगर मैं इबादत में गुजारता तो ताला ने तो मेरे मुंह में वैसे ही मिठास डाल देनी थी। उस जलेबी को मुंह के करीब लेके जाएं और उसको फेंक दें। बोले इसकी खातर नफ्स को तोड़ा उन्होंने, सारी जलेबी फेंक, चखी भी नहीं, जलेबियाँ सारी फेंक दी, शुक्र करके खड़े हो गए। तो नफ्स से लड़ना जो है वो यही है कि आपके सामने देखिए, जो लोग बीमार होते हैं मनाही होती है कि जी आपने ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। रमज़ान में खाने लगे होते हैं, बिक रहे होते हैं, लोग खा रहे होते हैं, आप बैठते हैं खामोशी से, नफ्स को काबू कर रहे हैं ना। रमज़ान जो है वो नफ्स को ही काबू करने के लिए अल्लाह ताला ने साल में 1 महीना रखा कि 11 महीने तुम कंट्रोल में रहोगे। तो नफ्स को काबू करना सीखें, उससे लड़ना सीखें कि ये मैंने नहीं करना। तो आहिस्ता आहिस्ता आपका ज़मीर जो है वो डबल हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा, मना करने में कामयाब रहेगा। तो अपने नफ्स को आप काबू रखें। इसीलिए रब ताला ने इतना कुछ कहा है। कसम है सूरज की, कसम है चाँद की, कसम है ज़मीन की, कसम है सूरज की रोशनी की, कसम है चाँद की रोशनी की। कितना कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। उसको पता है कि ये लोग जो हैं छोटी छोटी बात को समझेंगे नहीं, इतनी इम्पोर्टेंस दी उन्होंने। अगर आपने नफ्स को काबू कर लिया तो आपका मसला हल हो जाता है। फिर आप कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे। फिर आप यह नहीं करेंगे
एक दफ़ा और कर लेता हूँ, माफ़ी मांग लूँगा, तौबा कर लूँगा अल्लाह ताला से, फिर 2 दिन के बाद वही काम कर, एक दफ़ा और कर, सभी करते हैं ना, मैंने कर लिया तो क्या हुआ, रब माफ़ कर देगा। ये बहाने साजी से हम अपने आप को तसल्ली देते हैं ना। गलत काम हो जाए तो अपने आप को कोसें, अपने नफ्स को कोसें, अपने ज़मीर को मजबूत करें, गिड़गड़ाएं, रोएं रब ताला के सामने, मुझसे गलती हो गई। तौबा करना ऐसा नहीं कि काम कर लिया, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, रब ताला माफ़ फरमा देना। तौबा करनी है तो सही मानों में तौबा करें, बैठ के गिड़गड़ाएं, अपने जुर्म का इतराफ़ करें, उसको एनालाइज करें कि ये मैंने क्यों कर दिया, ये तो अल्लाह ने मना फरमाया था मुझे, फिर उससे माफ़ी मांगे। तो उसके बाद डिटर्मिन्ड एफर्ट करें कि ये दोबारा नहीं करेंगे, तो आपने नफ्स पे काबू पा लिया। तब रब ताला फरमाते हैं कद अफलाह मन ज़क्काहा, ये याद कर लें, कद अफलाह मन ज़क्काहा, जिसने नफ्स पे काबू कर लिया वही मुराद को पहुंचा। कद अफलाह ज़क्काहा, जब आपको नफ्स आपका तंग करे तो ये रिसाइट कर लें, ये पढ़ लें, कद अफलाह ज़क्काहा। और जब ज़्यादा तंग करे तो फिर आप पढ़ लें वक़द खाब मन दस्साहा, कि ये नामुराद हो जाऊंगा मैं अगर ये फॉलो करूंगा। तो आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत, फिर रब ताला आपकी मदद फरमाते हैं कि आओ सही रास्ते पे चलते हैं। बिलीव मी, रब ताला मदद फरमाते हैं, आ जाओ। उस मदद के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्म दिया और कहा इनको बताओ असल में मेरा मकसद क्या है, मैं कुरान करीम जो दिया है इसको प्रैक्टिकल लाइफ इसकी करके दिखाओ इनको। तो हमें बहुत सारी असलाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को फॉलो करने से हो जाती है। मैं कहता हूँ वो टॉर्च है, उसको लेके चलें साथ, आपको अंधेरे में भी अपने कदम सही पड़ते दिखाई देंगे। लेके चलें उसको साथ, सुन्नत को साथ लेके चलें। आपने अगर रब ताला की मोहब्बत और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिल में बसा ली तो फिर खुद ब खुद आपकी अफलाह होनी शुरू हो जाती है। फिर आप अपनी मोहब्बत को बेकार करने के लिए कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे अल्लाह ने मना फरमाया है, क्योंकि इश्क में तो इंसान बहुत कुछ कर लेता है। हम सबको कुछ न कुछ तो तजर्बा है इश्क का, क्या कुछ नहीं करता इंसान इश्क में। तो अगर ये इश्क रब ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आप शुरू कर लें अपने दिल में, तो फिर नफ्स पे काबू पाना बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। आप करके देखिएगा एंड सेंड कमेंट्स कि जी हाँ मैंने ये किया था, 3 दिन 4 दिन से मैं ये करने लगा हूँ। करके देखिए, आजमा के देखिएगा इसको। रब ताला आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। उसका नाम जपना शुरू कर दिया तो आपको खुद ब खुद आपका जो ज़मीर है वो जागने लग जाता है। अल्लाह ताला के नाम से, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से आपके अंदर रोशनी होनी शुरू हो जाती है। आपका नफ्स जो है वो कांपने लग जाता है कि ओहो ये तो सीधी राह पे चलने लग गया, मेरी नहीं सुनेगा अब ये। तो नफ्स को सख्ती से काबू में रखें, काबू करें। फ़कीर लोग क्या करते हैं, खाना पड़ा हुआ सामने, उनकी ख्वाहिश से बना है, उठेंगे पानी से पेट भर लेंगे, एक रोटी पानी से खा ली, नमक डाल के उससे रोटी खा ली, पेट भर गया, कहने कुछ नहीं खाऊँ। नफ्स काबू में आएगा। दिल कर रहा है कि मैं जलेबियाँ खाऊँ, सामने पड़ी हुई नहीं खानी, बैठे रहना नहीं खानी, नहीं करूँगा ऐसा। आपका नफ्स कमज़ोर होना पड़ेगा, ज़मीर मजबूत हो जाएगा। ये 2 फरिश्ते, एक फरिश्ता है और एक शैतान है, तो फरिश्ते को आप मजबूत करें, शैतान को कमज़ोर करें, तो ज़िंदगी बड़ी कामयाब हो जाती है, ज़िंदगी बड़ी बेहतरीन हो जाती है। आपको अल्लाह की मदद शामिल होती है हर कदम के ऊपर। अल्लाह ताला दिल से आवाज़ आती है कि नहीं ये नहीं करना तुमने, इधर को जाना है। जैसे मैं कहता हूँ हम घर से चलते हैं, एक लेफ़्ट को टर्न कर लिया कि ये शॉर्टकट है, आगे ट्रैफिक जैम में फंस गए, निकलते हैं, रब ताला कहता है लेफ़्ट को नहीं जाना, दिल में आता है राइट को चले जाओ।
رائٹ کو جاتے کہتے یار بہت اچھا کیا تم نے تو. وہ سڑک مڑ گئے, ادھر تو ٹریفک جیم تھا, سڑک روڈ ورکس ہو رہا تھا, سڑک بند ہوئی تھی. رب تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ اس طرح انسان کو سیدھے راستے پہ رکھتی ہے. تو اس سیدھے راستے کو پکڑنے کی کوشش کریں آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.